हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ में कुछ नया कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो नए जोश और नए जुनून के साथ। दोस्तों, आप सभी लोगों ने मेरे चैनल पर व्लॉग्स देखे, ट्रैवल व्लॉग्स देखे, एनएमएमएस के बारे में इंफॉर्मेशन देखी, एनएमएमएस में मेरी जर्नी देखी। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए कुछ नया लाए हैं, हम लोग कुछ नया लाए हैं, मेरा चैनल कुछ नया लाया है, अमर लाइफ लेंस। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि क्या होने वाला है इस वीडियो में। तो यार, ये ब्रॉडकास्ट है हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अब ऐसा क्यों है ये हम जानेंगे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आई नो आप सभी लोग क्यूरियस होंगे कि हु इज मिस्टर आबिद पटेल। मिस्टर आबिद पटेल इज अ बिजनेसमैन हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 20+ years in sales and marketing. Currently, he is working on his startup named as Time Saver Group. He is also a mentor, coach, and help entrepreneurs in their growth. In this podcast, Mr. Abid Patel will share their knowledge on career guidance, communication skills, time management, and leadership. Hope आप सभी लोग excited होंगे वीडियो के लिए। Okay, so here we go with Mr. Abid Patel sir in our first podcast. We, My Life Lens family, welcomes you in our first podcast. Thank you so much, Amay. It's quite exciting to be here with you, youngsters, and I'm looking forward to your questions and answering them. Okay, so guys, here is our first question to Mr. Abid sir. सर, पहले हम करियर गाइडेंस से चालू करते हैं, फिर हम टाइम मैनेजमेंट लेते हैं और फिर हम आगे लेते हैं मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। आई होप ये सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। पहला क्वेश्चन मिस्टर आबिद सर आपके लिए ये है, हाउ इम्पोर्टेंट इज नेटवर्किंग एंड इंटर्नशिप इन बिल्डिंग अ सक्सेसफुल करियर? See, the question you asked me is very relevant in these days because, as you said, hiring. Most of the students who come to me find it difficult to find jobs. The problem is not with jobs. There are plenty of jobs. The problem is with reach, and most of the hiring is not generally is happening through your normal channel. So you keep applying and there is no reply, right? The reason is very simple. People who know each other, they connect and you get a job. Now, to give you an example, why success breeds success, right? You go to IIMs and IITs. Now, for them, getting a job has never been a problem, or even getting capital for their business venture is also not a problem. The reason is their alumni network, the reach they have within the network, and that is a responsibility not just of your institution. I think it is also the students who need to come forward, students like you and your mentor-mentee groups, where you can actually do a lot for each other. Say for example, a person in IIM, he joins a company and he grows in that company, becomes a CEO. The first place he would want to hire managers from would be IIM, because this strong alumni and the quality of the institute is aware of. Same thing with IITs, right? So correct. Networking is definitely a good skill to have. Okay. And the other question was related to networking. Other question is also, how important is networking and internship in building a successful career? So, any volunteering activities a student is doing will benefit his career. Now, when I say volunteering, it not necessarily means physical volunteering. A lot of opportunities exist for volunteering. For example, a person like me who is building a startup will need interns who could assist me online, right? There are many such entrepreneurs. So, working closely with entrepreneurs can give you a lot of insights. The amount of exposure and experience you get working with entrepreneurs is much higher than working for an established company, because there you're focusing on only the what. With an entrepreneur, the entrepreneur is also aware of the how and why. So when you know the reasons for the decisions, your quality of experience is much higher. Correct. Yeah. So, sir, second question in career guidance we can have is, what advice would you give to college students who are unsure about their career paths or majors? Unsecure of their career for? About their career paths or majors. Like अभी colleges में इस साल 2023 में
कंपनीज बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल हायरिंग नहीं हो रही स्टूडेंट्स की, तो वो इंजीनियर क्या करेगा इन फ्यूचर? सी ऐसे हमारे टाइम में भी मैंने देखा है जहाँ पे इंजीनियर्स कुछ समय पे बैठे हैं, दे आर सिटिंग वेटिंग फॉर हायरिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज इंजीनियर्स आर प्रोबेबली गोइंग सीकिंग सिमिलर जॉब्स. सो जो बड़ी कंपनीज में होता है ना, देयर इज बल्क हायरिंग, राइट? Many of these their employees are sitting on the desk. Many they are hired more than they require, and the requirements keep on coming in. So sometimes the requirement cycle might change, but that should not stop them from looking at other industries or acquiring necessary experience. See, if you are very rigid, first of all, if you are really focused and rigid on what to do, then what happens is that then you probably face this problem. Then you need to have patience if you're planning and improving your skills in that direction. But more importantly, thinking and worrying doesn't help, right? If you keep worrying about something, it makes the situation worse. So first thing you have to develop is that patience. Okay, and that is hard in this world, right? This is the age of immediate gratification. Innovation. So typically your peer pressure will be there. If you see some of your friends been employed, then you think, okay, yaar, mera kya hoga? I'm not getting opportunity. Others are getting opportunity, but you're not competing with those people. You are competing with yourself, right? Yourself. So you have to think about, you have to plan what is going wrong. Maybe ask questions, take help. But I think during this time, actually, you need a counselor, a mentor. Okay, sometimes you might need a coach because there is a gap in how you are approaching. So I think you should approach even senior people, and not, instead of asking them for a job. A lot of youngsters come to me and directly are asking for jobs. Nobody's carrying jobs in their pockets, are they? They are not. Correct. Okay, so the best approach in this case would be to ask for help, guidance. Okay, so a lot of seniors are willing to help. They can giving you advice. So make connections with them. करेक्ट. सो अभी जो भी हमारे व्यूवर्स होंगे वो सोच रहे होंगे कि आबिद सर ने बोला कि सभी से कनेक्ट हो जाओ, उनसे क्वेश्चंस पूछो, कोई कोच चाहिए, कोई मेंटर चाहिए, तो हमारे पास तो है ही नहीं. तो यार यही सारे क्वेश्चन तो हम सॉल्व करने के लिए आबिद सर और मैं बैठे हैं आपके लिए. आपको कोच चाहिए, आपको मेंटर चाहिए, आबिद सर इज देयर फॉर यू. अब आप बोलोगे हाउ कैन वी कनेक्ट टू मिस्टर आबिद सर? You can connect him on LinkedIn. I will link the LinkedIn ID in our YouTube description page. Right. So see, एक तो ऐसे होता है कि पहले तो जब कोई यंगस्टर जब कनेक्ट होता है तो इसमें दो चीजें होती है. फर्स्ट, किसी को भी जो भी प्रोफेशनल बनना चाहता है उसको एक ध्यान में रखना चाहिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप. एक तो क्या होता है कि आप एक जीरो सम रिलेशनशिप बना लो. बेनिफिट एक इंसान को हो रहा है, दूसरे को नहीं हो रहा है. ये रिलेशनशिप बहुत शॉर्ट टर्म चलता है, ज्यादा देर नहीं चलता. दूसरी जगह पे आपको पता नहीं है आपको क्या पूछना है एंड यू जस्ट कनेक्टिंग टू अ मेंटर, तो वो जीरो नेगेटिव सम हो जाएगा. मतलब नेगेटिव सम में -1 क्या होता है, -2 होता है. मतलब दोनों का भी नुकसान होता है. जहाँ पे वो जो मेंटर है उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है और आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या पूछना है, आपको किस तरह का हेल्प चाहिए. ओके. और जो आखिरी जो होता है पॉजिटिव सम जो होता है +1+1, जो पॉजिटिव सम रिलेशनशिप होता है, इसमें दोनों पार्टी को बेनिफिट होता है. अभी ये मत समझना कभी भी कि मेंटर सिर्फ आपके पास कोई बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट देख रहा है. मेंटर को भी इमोशनल बेनिफिट की जरूरत होती है. बहुत बार मेंटर को बहुत खुशी होती है कि कोई उसका मेंटी जो है या प्रोटेजे जो है वो रियल में उसका एडवाइस पे कुछ अपना बेनिफिट कर रहा है करियर को. तो वो इमोशनल बेनिफिट भी बहुत बार ऐसे होता है. जरूरी नहीं कि हमेशा फाइनेंशियल बेनिफिट हो. तो ये बात जरूरी समझना कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हैं आपको मदद करना चाहेंगे, बट आपका इनपुट और आपके रियल में इंटेंशन होने चाहिए. करेक्ट. ये बहुत जरूरी है समझना. सो एवरीवन दोज हु आर इन कॉलेज स्टूडेंट्स, आबिद सर ने अभी यही चीज़ बोली कि आप कॉलेज में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते अगर आपको अपने अंदर का एंटरप्रेन्योर बाहर लाना है, राइट, और आपको लगता है कि मैं बिजनेस में जा सकता हूँ, तो आप कंपैरिजन मत करिए किसी से.
आप खुद पे विश्वास रखिए कि नहीं मैं कर सकता हूं एंड आई डोंट हैव टू कंपेयर विथ मी विथ अदर्स, राइट। आप कोडिंग कर रहे हैं, दैट्स गुड, लेकिन आपका अगर स्टार्टअप में माइंड बन रहा है तो फिर आप सिर्फ खुद से कंपैरिजन करिए। जो है आप खुद हैं, और मेंटरशिप के लिए अपने बड़े या अपने कोच या अपना मेंटर या टीचर या फैकल्टी या जो भी है उनसे कंसल्ट करिए। सो अभी करियर गाइडेंस तो हमने कर लिया कि करियर कैसा होता है, क्या होता है। अभी कॉलेज स्टूडेंट्स या एंटरप्रेन्योर बोलेंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हम टाइम मैनेज कैसे करें। कॉलेज का वर्कलोड इतना है, 10 to 5 हमारा कॉलेज है, उसके बाद में कॉलेजेस के असाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो पहली चीज मैं सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि यार हमने कोट पढ़ा होगा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। 10 से 5 की लाइफ कॉलेज में हम लोग रहते हैं, 5 बजे 99% स्टूडेंट्स आकर कॉलेज से आकर सो जाते हैं, लेकिन वो जो 1% लोग होते हैं ना, वो कॉलेज से आकर अपना जो टाइम लिमिट है असाइनमेंट्स वगैरह वो 1 hour 2 hours में कंप्लीट करके अपना जो स्टार्टअप है, अपना जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो माइंडसेट है, जो गोल है, वो कंप्लीट करते हैं। यार 4 साल की नींद खराब करके आप कुछ अचीव कर सकते हो मिस्टर आबिद पटेल सर जैसे, या तो आप 4 साल अपना सोकर कुछ नहीं कर सकते, या तो आप दुकान खोलोगे, या तो फिर वो MBA चाय वाला जैसा कुछ होगा, नया बीटेक चाय वाला। So here with the next question on the time management. So what strategies or techniques have found you most effective for managing your time and balancing your academic workload with other commitments? See, अभी यहाँ पे तो आपके जो दर्शक हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो आई एम ट्राइंग टू बैलेंस बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। या डेफिनेटली। इसमें ऐसे है कि टाइम मैनेजमेंट से पहले क्या आता है वो इम्पोर्टेंट है, राइट। सी, पहले तो ये बात आती है कि आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टाइम मैनेजमेंट डजंट हैपन इन अ वैक्यूम। आप ऐसे ही टाइम मैनेज क्या करोगे, किस लिए मैनेज कर रहे हो। एक तो पहले आपके गोल्स बनने चाहिए, उसके लिए आपको करियर क्या है वो समझना है। तो मैंने उस पे आर्टिकल्स भी लिखे हैं मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे, करियर के जो 4 स्टेजेस होते हैं उसके बारे में मैंने लिखा है। Okay, if I have more time here, then I can explain that something called 4 stages, where we can discuss that. But just since आपने वो टाइम मैनेजमेंट की बात की है, उस मुद्दे पे मैं आता हूँ। टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स है, राइट। आप जो है एक तो टाइम को इम्पोर्टेंट, अर्जेंट, ओके, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट, ऐसे ब्रैकेट्स में बना लो। फिर कौन से इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपके करियर के रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म करियर के रिलेटेड है, वो शायद अर्जेंट नहीं है, लेकिन उसके लिए टाइम डेडिकेट करना पड़ता है। अभी ऑलरेडी ऑनलाइन टूल्स है हमें अभी बहुत सारे, जैसे अपना गूगल कैलेंडर ही हो गया ना, करेक्ट है ना। गूगल कैलेंडर भी आप रिकॉर्ड कर लो। बट ये जो चीजें है ना, टाइम मैनेजमेंट, इट्स अ हैबिट। मतलब उसको आपको हैबिट करना है कि सुबह उठने के बराबर एक टाइम मैनेजमेंट कैलेंडर को देखो, शाम को सोने के पहले टाइम कैलेंडर को देखो, कितना आपने उसको फॉलो किया है। तो ये करते करते आदत लग जाती है। आदत मतलब बुरी आदतें बहुत जल्दी लग जाती है। अच्छी आदतें लगने में थोड़ी, तो आप इतने अभी कॉलेज समय से शुरुआत करोगे तो ये आदतें लगेंगी। हमने बहुत देर से शुरुआत की, हमारी आंखें बहुत देर से खुली। बट आजकल के बच्चों के लिए ये सभी इंफॉर्मेशन जो है, नॉलेज है, अवेलेबल है। तो यू नो यू आर इन कंपटीशन तो है, यू आर कंपीटिंग विद द वर्ल्ड, करेक्ट है ना। तो टाइम मैनेजमेंट अभी मान लो कि मैंने समझो इट्स वेरी इजी, राइट। वो कहानी है जहाँ पे जो सीनियर जो है CEO है कंपनी का, वो अपने एम्प्लॉयज को बताता है कि कैसे टाइम मैनेज करना है, राइट। सो उसमें उसने क्या किया कि कुछ पत्थर ले लिए, राउंड स्टोन्स होते हैं, उसको ले लिया, ओके। एक ग्लास में पानी लिया, वो पानी को एक जार में भर दिया, फिर उसमें बड़े स्टोन्स डाल दिए, फिर उसके बाद में उसने जो है छोटे छोटे पत्थर जो है उसमें डाल दिए। तो उसके बाद में उसने उसमें सैंड डाल दी, बालू डाल दी, राइट, ओके। उसके बाद में उसने उसमें बियर डाल दी। मतलब कहने का मतलब क्या था उसका कि ये बड़े स्टोन्स है ना, दे रिप्रेजेंट द मोर इम्पोर्टेंट टास्क इन योर लाइफ, जो है ना अपने करियर के लिए जो है काम, जो है अपना ऑफिस का जो काम है, या फिर जब तुम्हारी फर्स्ट जॉब लगती है, या फिर अभी एकेडमिक के लिए है ना, कौन से सब्जेक्ट तुमको टफ लगते हैं, तो ईट द फ्रॉग फर्स्ट बोलते हैं। फर्स्ट यू हैव टू डू द डिफिकल्ट टास्क,
So Difficult focus task. on, right, focus on the Right. big stones. वो उसके बाद में जो छोटे स्टोन्स है ना, जो इजी सब्जेक्ट्स है तुम्हारे, उसको करो. उसके बाद में जो बालू है, जो तुम टाइम भी अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर रहे हो, वो भी जरूरी है, लेकिन वो गैप्स में बढ़ता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो पहले नहीं बढ़ता है. अभी बालू, इफ यू पुट द सैंड फर्स्ट पहले डालोगे ना, तो बड़े पत्थर नहीं जाएंगे उसमें, तो सैंड से पूरा चार भर जाएगा. भर जाएगा. उसके बाद में अगेन ही स्पोर्ट द बियर, दैट मींस दैट आपके पास कुछ टाइम पास या एंजॉय करने के लिए भी समय होना चाहिए, वो भी जरूरी है लाइफ में. सो ऐसा नहीं कि लाइफ में कि सिर्फ काम ही है, ऐसे नहीं. सो दैट मेक्स अ कंप्लीटनेस, राइट. सो ये भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि कुछ चीजें जो हैं, फॉर एग्जांपल योर हेल्थ, आजकल का जो डाइट है, आजकल का जो लाइफस्टाइल है ना, उसमें यू नो यू आर जगलिंग मेनी balls, you know, और एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल ने बनाया कि two of the balls are like made of glass, that is your health and your relations with your family. See, when you are juggling the balls, more important are these. If you're not managing your health, rest all you cannot do. So you have to dedicate some time for exercise, some sports you follow. So पहले से ही आपको आदत लगेगी ना स्पोर्ट्स की, तो आपके लाइफ में बहुत आसानी होगी, क्योंकि sports will teach you many things. Correct. Sports will teach you team, working with the team. Sports will teach you leadership. Sports will teach you, give you patience. कि भाई यार मेरा टाइम चला है. लीडरशिप, कम्युनिकेशन भी उसमें होता है स्पोर्ट्स में. बहुत कुछ होता है स्पोर्ट्स में. इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट स्पोर्ट्स एज समथिंग व्हिच यू कैन लर्न फ्रॉम, तो बहुत कुछ है उसमें सीखने लायक. तो उसको भी है ना, यू ट्राई टू फाइंड सम स्पोर्ट्स यू कैन फॉलो एंड डू इट, एंड लाइफ बिकम्स कंप्लीट. तो सी, जो पूरा पहाड़ चढ़ना है करियर का, सी व्हेन आई से करियर मैनेजमेंट ना, तो 3 स्टेजेस 4 स्टेजेस होता है ना. So that's third stage is the becoming a head of a company, like a CEO, director. So अभी से तुमको है ना सॉफ्ट स्किल्स एक्वायर करना जरूरी है. कम्युनिकेशन, जॉब तो मिल जाएंगे टेक्निकल स्किल्स पे, बट ग्रोथ उससे नहीं होने वाली है. फर्स्ट स्टेज पे अटक जाओगे. सेल्फ स्किल्स होने चाहिए सभी के पास में. हाँ, वो स्किल्स डेवलप करना है. अभी अपने करियर प्रोफेशन को जिसने जो चूज किया आपने, हर एक प्रोफेशन में कम से कम 100 स्किल्स होते हैं सॉफ्ट स्किल्स. वो विजिबल नहीं होते, इंटेंजिबल होते. तो कम से कम उसमें से 8-10 आप समझ लो और उसको डेवलप करने की कोशिश करो. ये बहुत जरूरी है. करेक्ट है ना. सो इफ वी कंक्लूड टाइम मैनेजमेंट, आबिद सर ने कहा बेस्ट थिंग यार अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो. राइट 10 से 5 का फॉर सपोज आपका कॉलेज है, देन प्रायोरिटी वाइज अपने जो सब्जेक्ट्स है, फॉर सपोज अकाउंट्स आपको टफ लगता है तो पहले वो सॉल्व करिए. राइट उसके बाद में अदर सब्जेक्ट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट्स, अगर आपको अपना एंटरप्रेन्योरशिप या अपना यूट्यूब करियर या कोई कंपनी में आप काम करते हो, या तो इन सभी चीज़ों को एक पेज पर लिख लीजिए. उसके बाद में उन सब चीज़ों को प्रायोरिटी वाइज अरेंज करिए कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है. राइट अब कॉलेज में इफ़ योर पेरेंट्स आर सबमिटिंग 16 लाख रुपीज, देन आई गेस फर्स्ट प्रायोरिटी आप सभी का पढ़ाई होना चाहिए. देन आफ्टर ऑल दिस थिंग्स, डेफिनेटली पढ़ाई एक अभी के वर्ल्ड में पढ़ाई ठीक है नहीं मायने रखती, आपका सॉफ्ट स्किल्स, आपकी हर चीज़ें मायने रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं डिग्री मैटर्स, उसके बाद में सारी चीज़ें हैं. हमें तुमने एक अच्छी बात कही कि थिंग इज दैट, सी हम जब जिस चीज पे इन्वेस्ट करते हैं ना, उस पे फोकस भी करते हैं. करेक्ट. सी मैंने लर्निंग पोर्टल्स में यूज करता हूँ. फॉर एग्जांपल लिंक्डइन का लर्निंग पोर्टल में यूज करता हूँ, काफी यूजफुल है. स्टूडेंट्स भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड मैं जब उसका पेमेंट शुरू किया मैंने, तो मैं ऑटोमेटिकली एवरी डे आई एम स्पेंडिंग सम टाइम ऑन इट, और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ. ओके, एंड लर्निंग जो है कंटिन्यूअस रहता है. इट डजंट एंड. आपके कॉलेज खत्म हो तो लर्निंग खत्म नहीं, वहां से शुरुआत हुई एक्चुअली. स्कूल कॉलेज में तुमको सिखाया जाता है कि सीखना कैसे है, यहाँ से आपकी शुरुआत हो गई सीखने की. तो आप नाउ यू आर बिकमिंग नाउ मोर, आपकी जो है 1 इंच वाइड 1 माइल डीप, आपकी जो इंडस्ट्री में है ना, आपकी नॉलेज की जर्नी शुरू हो गई. सो इट्स लाइक अ पीएचडी. योर वर्क इज लाइक अ पीएचडी वर्क. यू गेटिंग मोर फोकस्ड. सो एक बात समझना जरूरी है कि भाई इवन व्हेन यू हैव सम हाई वैल्यू रिलेशंस लाइक अ मेंटर एंड कोच और एजुकेशन, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट इज एजुकेशन. Okay, so if you have a mentoring relationship also, if you don't have a discipline, okay, एक तो वो relationship इतना strong नहीं है ना, and there is no exchange of value. It could be money or something else. If there is no exchange of value, no,
आपको जो फ्री मिल रहा है ना उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो व्हाट यू सेड इज राइट। If you know the moment your parents are spending that much, they're taking pains, and then you have to give the ROI, return of investment आपको देना है। बट एजुकेशन का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, मल्टीपल्स। जो आप कोई भी स्टॉक मार्केट में ले लो, शेयर मार्केट, उससे भी कई गुना ज्यादा एजुकेशन का बेनिफिट होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपका गोल्स ठीक नहीं है, आपको जो इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, बहुत सारे लोग एजुकेशन पे पैसा वेस्ट कर देते हैं। आप गलत डायरेक्शन में आप एजुकेशन लोगे ना और उसको रास्ते पे आप जाना नहीं है आपको, तो पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट इज दैट, एक तो असेसमेंट करना जरूरी है अपना इंटरेस्ट। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर योर इंटरेस्ट, योर स्किल, योर नॉलेज मैचेस, एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द प्लेस वेयर यू विल ग्रो। सो वो डिटरमिन आपको, है ना, करियर जो गाइड करता है, ऐसे लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। करेक्ट। सो टाइम मैनेजमेंट आई गेस सभी लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आबिद सर ने अभी अभी कुछ कहा था कि 4 स्टेजेस ऑफ समथिंग, उन्होंने आर्टिकल कुछ तो लिखा था। तो यार वो सुनना भी तो पड़ेगा ना सभी को, तो आखिरी तक वीडियो देखो, क्योंकि अभी आगे बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले जो आपको हेल्पफुल करेंगे अपने ड्रीम्स अचीव करने में। कॉलेज लाइफ कंप्लीट होने तक आपको बेस्ट बनना है ना, तो ये पॉडकास्ट तो जरूर देखना पड़ेगा। So, here with this third topic, we are having management and leadership. Sir, what are the key attributes or qualities you believe make a successful leader or a manager? Yeah. So, see, manager तो वो basically return of investment है, right? वो बंदा देखता है कि आपका टाइम efficient है, okay? Doing the things right. Management is about doing the things right. Leadership is about doing the right things. So leadership is definitely effective, okay, and management is about efficiency. कम पैसों में ज्यादा काम करवा लो, कम समय में ज्यादा काम करो, ओके। बट ये कंफ्यूजन लोगों में होता है। कोई भी ऐसे, हम लोग एब्स्ट्रैक्ट चीजें के बारे में बोलते हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक बंदा लीडर हो, एक बंदा मैनेजर हो। एक ही इंसान है ना, मैनेजर एंड लीडर दोनों भी हो सकता है। ये ना, ये बात समझना जरूरी है। अ पर्सन कैन बी योर मैनेजर बट ही कैन एक्ट लाइक अ लीडर। करेक्ट। तो एट टाइम्स उसको जरूरी है कि हमेशा वो लीडरशिप करता रहेगा, आपको एनकरेज करता रहेगा, आपको जो करना है वो एक्सपेरिमेंट करो, तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो बंदा कभी कभी अब लीडर बनेगा, आपको गाइड करेगा, लॉन्ग टर्म विजन देगा, कभी वो मैनेजर की जैसे भी काम करेगा। तो ये जरूरी है कि ये जो चीजें हैं, दोनों क्वालिटीज हो सकती है एक इंसान में। तो फर्स्ट इज दैट, जो मैनेजमेट जो होता है ऑन टू डे एक्टिविटीज, एक तो अपने आप को खुद समझना है। अभी इंडिया में अभी हम लोग क्या करते हैं, करियर के अप्रोचेस होते हैं, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, कुछ लोग बिल्डर्स होते हैं, दे एंजॉय बिल्डिंग some products, new products. So ऐसे लोग ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। वो जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी होती है फ्रॉम 0 to 100, उसमें 0 to 1 का जो होता है, उसमें बिल्डर एटीट्यूड होता है, राइट? तो कुछ लोग मैनेजमेंट करते हैं, तो उनको वो जो एंटरप्रेन्योर को मैनेजर की भी जरूरत पड़ती है। सो मैनेजर एंड अ बिल्डर विल बिल्ड अ कंपनी, राइट? करेक्ट, करेक्ट। एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। अभी बिजनेस की बात आ गई, कोई यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय, आपका जो एजुकेशन है जनरली इट प्रिपेयर्स यू टू वर्क फॉर बिगर कंपनीज। तो वो जो जर्नी होती है इट्स लाइक 10 to 100 की जर्नी है, राइट? कंपनी इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। तो आप सब लोग, कोई भी जो है, जो हाई परफॉर्मर है, वो सोचता है कि मैं मल्टीनेशनल में काम करूंगा। हाँ, जनरली मैं काफी स्टूडेंट्स से मिलता हूँ, तो ये मुझे देखने को मिलता है। सो आई हैव सीन दैट अगेन एंड अगेन हैपनिंग। Most of the students who do well, they are working for good salaries, they want to work for big companies. So ये जो आपको पढ़ाया जाता है ना, that makes you capable to work and build companies, build larger companies, right? So you have to understand different careers and kind of companies which will propel you. So there are, ये paradox है, right? It's abstract thing. Sometimes you are working for larger companies, but sometimes वो कंपनी के साथ if you work at a lower stage, lower level, आपकी करियर ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आपको नॉलेज एंड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस मेक अ करियर। सी, योर नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस, ऑल दिस इन टोटल मेक्स योर करियर। सो आपको अपॉर्चुनिटी एक्सपीरियंस की नहीं मिलेगी if you are not working closely with the CEO or not working closely with an entrepreneur. Correct.
राइट. सो इसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं. दिस जर्नी इज कॉम्प्लेक्स, सो यू नीड एक्सपीरियंस पर्सन टू गाइड यू. सी, अभी एक मिस अंडरस्टैंडिंग होती है. अभी मीडिया भी है ना बहुत ज्यादा प्रमोट करती है यंगस्टर यूनिकॉर्न बना रहे हैं वगैरह. बट आज भी आप गूगल करके देख लो, यू आस्क टू एक्सपर्ट, आज भी जो है ना द एवरेज एज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज 35 to 45 years. सो ये जो यंग लोग भी सक्सेसफुल हो रहे हैं ना, उनके पीछे बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं. एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू है. ओके, सी आप तो डिजिटल, सी यंगस्टर्स हैव हाई आईक्यू, दैट इज अ गिवन. हर जनरेशन से आईक्यू बढ़ता जा रहा है. यंगस्टर, आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट के स्पीड से आपको नॉलेज मिल रहा है. हम किताबें पर हम लोग वेट करते थे कब मैन्युफैक्चर होकर हमारे तक आएंगी किताबें. आप लोगों को इंटरनेट का स्पीड है, और सोशल मीडिया का स्पीड तो इंटरनेट से भी ज्यादा है. तो हमारे जमाने में ईमेल का स्पीड होता था. अभी तो ये ना सोशल मीडिया के जो आप एक फ्रेंड्स बनाओगे, जो फ्रेंड्स फॉलो करोगे, वो सब मिल रहा है. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बेसिकली आपको समझना, ये थोड़ा बहुत सारी चीजें है ना अंडर द ग्राउंड होती है, दिखाई नहीं देती. यू स्टिल नीड पीपल, एक्सपीरियंस पीपल टू गाइड यू, बिकॉज इसमें IQ is not the only thing. There is something called social intelligence, there is something called adversity intelligence, then there is something called emotional intelligence. करेक्ट. आपके टाइम पे कुंजी होती थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और हमारे जमाने में आज चैट जीपीटी है. Yes, right. So अभी ये वक्त को भी समझना जरूरी है, right? अभी ये ना जैसे अब एरो आप धनुष्य यूज कर रहे हो, right? तो धनुष्य बाण जो होता है ना, आप जितनी पीछे खींचोगे उसको, उतनी आगे आपका धनुष्य जो है बाण जाने वाला है. तो धनुष आप कितना पीछे खींचोगे ना, तो आपको हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए. दैट मीन्स मैं तो अपना जो मेंटरिंग और कोचिंग करता हूँ, उसमें मैं बच्चों को पूरी अपनी स्टोन एज से जर्नी जो हुई है, एग्रीकल्चर एज, फिर इंडस्ट्रियल एज, फिर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज है ना, जो इंटरनेट एज, फिर सोशल मीडिया एज, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज, इसके बारे में पूरी स्टोरी बताता हूँ. और ये स्टोरी समझने के बाद आपको समझ में आएगा, और ये मॉडल आप यूज करके दुनिया को देखोगे ना, तो दुनिया को समझने में बहुत आसानी होती है. कई बार क्या होता है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि वे समझ नहीं पा रहे क्यों, व्हाई थिंग्स आर एज दे आर. और एक प्रॉब्लम बच्चों में क्या होती है, इफ यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो. अभी मुझे एक सब्जेक्ट में है ना, कुछ चीजें मेरे को थोड़ी पता है, तो मुझे लगता है कि मुझे सब पता है. बट आप जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं है, उसके बारे में आपको पता नहीं है कि आपको नहीं पता है. सिंपल सी बात है, लेकिन ये कंफ्यूजन है. ओके, है ना? करेक्ट. यस. और एक प्रॉब्लम अभी सोशल मीडिया में ये आ रही है. सोशल मीडिया एज में अभी भी है हम लोग, आर्टिफिशियल एज हमको अभी दस्तक दे रहा है. बट प्रॉब्लम है सोशल मीडिया एज की ये है कि यू आर नॉट व्हाट यू थिंक यू आर. You are what you think they think you are. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, you are not what you think you are. You are what you think they think you are. तो मैं सोच रहा हूँ कि अरे ये मेरे बारे में क्या समझता है, कैसे सोचता है, वैसे मैं हूँ. But you are not really, इंट्रोस्पेक्शन नहीं है. अंदर हम खुद कैसे हैं वो समझ नहीं पा रहे. तो उसकी वजह से चैलेंजेस आ रही हैं. परफेक्ट. आपने सोशल मीडिया का बात कहा, तो सभी हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, सी यार 99% लोगों में और 5% लोगों में यही डिफरेंस है. सर का ज़माना जो था वो कुंजी वाला था, जो बुक वाला था, जो भी हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, आबिद सर हैं, वो लोग एक बुक से बाहर आए, राइट. बुक से आज वो इतने बड़े लेवल पे हैं कि इतने सारे बच्चों को, इतने सारे बड़े लोगों को वो लोग गाइडेंस दे रहे हैं. ऐसा क्यों यार? अभी सभी के पास में इंटरनेट है, चैट जीपीटी है, बहुत सारे ऐसे टूल्स है जिसमें आदमी अपने को अपस्किल कर सकता है. लेकिन व्हाट दे डू, दे जस्ट स्क्रॉल इंस्टाग्राम, दे जस्ट स्क्रॉल फेसबुक, दे जस्ट टाइप मैसेजेस टू देयर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप, राइट. तो हम सब लोग 99% वालों में आते हैं, और 1% लोग वो होते हैं कि जो खुद को बिल्ड करते हैं इन एआई टूल्स के द्वारा, राइट. सो प्लीज एआई टूल्स को अच्छे वे में यूज करिए सभी लोग. अभी कॉलेज टाइम है आप सभी लोगों का यूज करने के लिए. आप जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं, राइट. अभी आप बोलोगे अमय सर हम लोग चैट जीपीटी कर लेते हैं ना असाइनमेंट के लिए. अमय सर हम प्रेजेंटेशन बना लेते हैं ना हमारे इसके लिए. 2 मिनट में बन जाएगा आपका प्रेजेंटेशन, 2 मिनट में आपके पास में चैट जीपीटी से आंसर आ जाएगा. आप बोलोगे सर देखो हमने तो इफेक्टिव वे में उसे यूज करा. आपने टाइम तो कंज्यूम कर लिया, लेकिन आपका ये पावर बिल्कुल खत्म हो गया.
जो आपका थिंकिंग पावर था वो बिल्कुल जीरो हो गया। अब आगे क्या? आपको जो सोचना था 2+2 4 होता है, ये आपने सोचा, देन एग्जीक्यूट किया। अब 2+2 आपने टाइप कर दिया और चैट जीपीटी से आ गया, देन व्हाट? आपका तो कोई इसमें इनपुट लगा ही नहीं, आपने तो बस टाइप कर दिया, हो गया, आउटपुट आ गया। आबिद सर एंड ऑल द अदर बिजनेसमैन, उनका इनपुट बहुत कम था एंड आउटपुट आप हमारे सामने देख रहे हो। इट इज व्हाट इट इज। नहीं, हमें इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा। तुम्हारा जो Yeah. enthusiasm है, you know this youngsters जो हैं बहुत सारे, they are really interested in growth. Okay, अभी ये जो माहौल बना है उसका भी बेनिफिट है आप लोगों को। See what we forget sometimes क्या होता है कि भाई ये जो स्टोन एज का जो जमाना था जहाँ पे बार्टरिंग होती थी, राइट, तो वो आज भी है। आप इंटरनेट में बार्टरिंग साइट्स हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट आपके स्पीड बढ़ गया है, कि कम समय में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बट पुरानी चीजें अभी भी हैं। सो व्हाट वी टेंड टू फॉरगेट इज दैट व्हाट इज व्हाट। अभी जो है आपका जो कुछ आपको डिसर्टेशन करना है, if you have to do some dissertation and you have to see, first of all you have to understand what is the purpose of education. Purpose of education is to make you think, build your ability to think. अगर वो आप भूल गए and you depend on AI, artificial intelligence to do the thinking, आप thinking outsource करोगे ना, तो then you are going to be biggest loser. Unemployability इसलिए है कि बहुत सारे कंपनीज में सोचते हैं कि भाई these youngsters are not employable, they have to give them more training, और हम लोग जैसे लोगों को हायर करते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। प्रॉब्लम इज क्या होती है बेसिकली, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे जमाने में भी थी, ऐसे नहीं कि इस जमाने में भी है, एंड वेरी फ्यू पीपल रियली वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या है। बट एजुकेशन का मतलब ही है कि मेक्स यू, इट शुड मेक यू थिंक। ओके, एजुकेशन का मतलब बहुत सारे लोग मिसगाइडेड तरीके से लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न टू बी एबल टू थिंक, राइट। आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ले लो, क्वेश्चन आंसर होते क्यों हैं? बेसिकली क्वेश्चन आंसर इसलिए होते हैं कि इट शुड मेक यू थिंक एंड फोर्स यू टू राइट। ओके, ऑफ कोर्स वो जो आपके टीचर्स होते हैं, प्रोबेबली सम ऑफ देम वांट यू टू बी स्ट्रिक्टली फोकस्ड ऑन हाउ टू, बट वैसे बहुत सारे अच्छे टीचर्स आ रहे हैं अभी, दे आर आल्सो बिकमिंग अवेयर राइट वे टू टीच। सो डेफिनेटली एक तो पहले अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, right? Without understanding, if you do something, then it's not going to benefit, it's going to harm. Correct. So we have completed time management. टाइम मैनेजमेंट के बाद में हमने, उससे पहले हमने करियर गाइडेंस समझा कि व्हाट एग्जैक्टली करियर गाइडेंस इज। उसके बाद में हमने नीचे हम सेकंड स्टेप में आए, टाइम मैनेजमेंट। हम थर्ड स्टेप में आए, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। अब जो थर्ड स्टेप है ना, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से। अब आप बोलोगे सर अमय सर, आबिद सर हमें तो स्टेज फियर है सर, हम लोगों को फेस नहीं कर पाते सर, हम कभी स्टेज पे बोल नहीं पाते सर, हम लोगों को कैसे मैनेज करेंगे? तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। मैनी स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, व्हाट टिप्स कैन यू ऑफर ऑन हाउ टू बिल्ड एंड मेंटेन कॉन्फिडेंस इन बोथ एकेडमिक and personal life and entrepreneurship? See, एक तो फर्स्ट एज आई सेड ये बहुत साफ है, क्लियर है कि ये जो है ना, यू आर गोइंग थ्रू अ मेज, राइट। अभी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ गई है, बहुत सारे एजेस का आपका अभी निचोड़ है, राइट। ऑल दिस एजेस आर नाउ कॉन्ट्रैक्टेड एंड कमिंग टू यू, लाइक पार्टर सिस्टम भी है आपके पास, इंडस्ट्रियल एज का जो भी मल्टीप्लिकेशन है, एग्रीकल्चर एज का एडिशन है, और फिर अभी इंफॉर्मेशन एज का जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो टेक्नोलॉजी ब्रीड्स टेक्नोलॉजी, तो उसकी वजह से है ना एक अंडर करंट है। एक बात समझना जरूरी है, एक सोशल साइंटिस्ट ने कहा है, एंड उसकी 3 किताबें हैं, एडविन टॉफलर उनका नाम है। सो व्हाट ही सेज इज दैट द फ्यूचर इज कमिंग टू अस वेरी फास्ट। ओके, सो अभी कॉन्फिडेंस का जो कमी है, या फिर यू फील दैट व्हाट इज दैट, देयर आर मेनी वेज टू टैकल इट, राइट, बट यू ऑल डेफिनेटली नीड अ काउंसलर और मेंटर टू हेल्प यू। But let me go more in depth. What is the problem? See, आपकी self esteem जो है ना, since we are deep into the social media age, हर तरह के आपके पास WhatsApp है, Facebook है, on a daily basis 4-5 घंटा तो आराम से उस पे spend कर रहे हैं लोग। Okay, इसकी वजह से psychological और mental जो अपने imbalances हो रहे हैं ना, उसका जो असर है, आई एम नॉट सेइंग गिव अप दैट, बट वो यूज करने का भी तरीका होता है, यू हैव टू सेफली यूज इट, राइट। इट शुड नॉट हार्म यू,
सो उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या हो रहा है, देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। ओके, एक तो वो बात है। सेकेंड चीज ये है, सक्सेस इज ऑल्सो टॉक्सिक। किसी और का सक्सेस आपके लिए टॉक्सिक है, सो डोंट फॉलो ब्लाइंडली सक्सेस। आप फेलियर से भी सीखो, सिर्फ सक्सेस पे सक्सेस नहीं। मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को देखता हूँ, अरे जो जिसके पास सूटकेस है, जो ज्यादा सक्सेसफुल है, उसके पीछे भागते हैं। नहीं, वो हमेशा आपके काम नहीं आएंगे। सक्सेस जो इंसान होता है ना, यू स्टार्ट बोस्टिंग एंड ही नीड्स मोर, ही इज बिल्डिंग हिज कॉन्फिडेंस यूजिंग यू। So hierarchy of needs में very explain, it is explained very clearly कि आपकी जो सोशल एस्टीम जो है वो दूसरों की लोगों की वजह से बनती है। आपके कितने फॉलोअर्स है आप देख रहे हो ना, दिस इज फेक सेल्फ एस्टीम। आपकी सेल्फ एस्टीम आपके पास से बननी चाहिए। कल मैं आज मैं आप कल से बेटर था, दैट शुड गिव यू कॉन्फिडेंस। सो अगर आप है ना कैलेंडर अपना नहीं बनाओगे, आपका गोल्स नहीं बनाओगे और लिखोगे नहीं मैं गोल की तरफ जा रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा ना, तब तक आपका सेल्फ एस्टीम नहीं बनने वाला है। बाहरी एक्सटर्नल चीजों से सेल्फ एस्टीम बनेगा ही नहीं, कॉन्फिडेंस ढीला ही रहेगा। सो अंदर की चीजों से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके लिए आपको जो है आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे और उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसको वॉच करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस उससे बिल्ड होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज में कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप। कॉन्फिडेंस कभी है, जिस चीज में आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज में आप कॉन्फिडेंस होगे। सो आपको कम्युनिकेशन जो है, लीडरशिप मैनेजमेंट जो भी करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, ऐसे असर्टिवनेस स्किल्स है, ऐसे बहुत सारे स्किल्स है, राइट? सो असर्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट हियर, राइट? ओके, कम्युनिकेशन में पहली चीज क्या है, आपको लिसनिंग स्किल्स चाहिए। असर्टिवनेस में यू शुड नो दैट यू आल्सो हैव राइट as much as the other person. You also respect others' right, but also know that you have right. So उसमें you have to understand that you have a right to live and you have a right to explore your career. So बहुत सारी बातों में ऐसे है ना, अवेयरनेस की प्रॉब्लम होती है। तो अवेयरनेस जो है ना वो कोच देगा आपको, मेंटरिंग जो होगा वो मेंटर देगा। मेंटर इज लाइक अ फ्रेंड, राइट? मेंटरशिप जो होती है लॉन्ग टर्म होती है, बट मेंटर इज नॉट मोनोगैमस रिलेशनशिप। मतलब मैं अभी आपका मेंटर बन गया, मान लो आप, मैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको मुझे पूरी जिंदगी झेलना है कि भाई आप सर ही मेरे साथ बात करेंगे तभी मैं सुनूंगा। नहीं, मैं अपने जो नेटवर्क होता है उससे आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, उसकी वजह से आपका ग्रोथ हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा मैं ही मेंटर आपको करूं, कोई और मेंटर भी आपको करेगा, बट थ्रू मी आई कैन कनेक्ट यू टू अदर पीपल। सो व्हाट आई मीन टू से इज अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं आजकल, एक्सेसिबिलिटी बहुत है। आपका कोई वेबसाइट पे जाओ, मेंटर्स आपको मिल जाएंगे, बट प्रॉब्लम इज उसको कैसे यूज करें। हम लोग व्हाट लेवल पे अभी हैं, राइट? तो उसको है ना हाउ लेवल पे जाना है, कैसे करना है, फिर व्हाई, क्यों करना है। तो सबसे पहले व्हाई आता है, क्यों करना है। सारी चीजों के लिए पहला स्टेप हमें रखना पड़ेगा। अगर आप पहले स्टेप से ही, मतलब उसके पहले ही आप इतने सोचने में लग जाओगे ना, देन आप वो पहला स्टेप रख ही नहीं पाओगे। एक बार उस फील्ड में कदम रखिए, देन द वर्ल्ड इज योर्स। आप एक बार उस फील्ड में घुस गए, देन लाइन टू लाइन आप आगे बढ़ते ही जाते हैं। और फॉर ऑल दिस यू हैव टू बी फोकस्ड, राइट? अभी सर ने कहा कि गोल एंड ऑल, ये तब आप तभी सोचोगे जब आप अपने इंस्टाग्राम की दुनिया, फेसबुक की दुनिया, यूट्यूब की दुनिया, इन सब से बाहर आओगे। टू ऑल, अगर आबिद सर ने भी वो कोट या वो स्टोरी सुनी होगी, सर चाइना में एक कैब ड्राइवर था। द गर्ल वॉज नेकेड, and she was standing in the street. He just waved her hand to that cab driver. The cab driver stopped. She asked that मुझे यहाँ पे छोड़ दो, in her Chinese language. She was naked. The driver was watching him from top to bottom. The girl seated in the taxi. The girl asked कि यार तुम मेरे को ऊपर से नीचे तक देख क्यों रहे हो? तुमने कभी नेकेड लड़की नहीं देखी क्या? The best answer I have get from that Chinese driver. एक बिजनेसमैन जो सोचता है, उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम टैक्सी जो हम मैं छोड़ने वाला हूँ तुम्हें, तुम वो पैसे कहाँ से दोगे? As you are not wearing any clothes. तो पैसे कहाँ रखे उसको पता नहीं है। Yes, that only the businessman thinks. सोचने को हर आदमी बहुत कुछ सोच सकता है, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर ने ना कुछ अदर सोचकर उसने अपने बिजनेस के बारे में सोचा कि यार भाई तू पैसे देगा कहाँ से, राइट? So think like this. Focus.
या फोकस्ड, बी फोकस्ड। आपको हर चीज अचीव करने के लिए आपको फोकस होना पड़ेगा। डेफिनेटली आबिद सर के लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स आए होंगे, राइट। हम एक स्टेप ऊपर चढ़ते हैं, मैंने आपको कहा, तो एक स्टेप पीछे खींचने वाले लोग बहुत सारे बैठे हैं, और इंडिया में तो स्पेशली बैठे हैं। आज आबिद सर इस पोस्ट पे, इस जगह पे हैं, तो भले ही उन्होंने 100 स्टेप आगे बढ़ने के लिए लिए होंगे, तो 1000 स्टेप उनके खींचने वाले लोग होंगे। राइट। तो स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, राइट। आबिद सर की लाइफ में भी होगा। यार उससे डिप्रेशन नहीं आना है आपको, कहीं ऐसा डिप्रेस फील नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, मोटिवेट होना है। अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हो तो आबिद सर जैसे मेंटर, आबिद सर जैसे कोच आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल है। जस्ट मैसेज हिम ऑन लिंक्डइन, जस्ट कनेक्ट। यार कनेक्ट हो पीपल से। जैसे सर ने कहा कि मैं हूं, हमेशा मैं ही नहीं हूं, मेरे भी कनेक्शंस है, मैं आपसे उनको ज्वाइन करवाऊंगा, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आप कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो अपना, आबिद सर से कोई और, उनसे कोई और, उनसे कोई और, राइट। तो दिस इज द मोटिवेशन दैट आबिद सर एंड हिज टीम कैन गिव यू, राइट। या। सो सर, कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा आ जाते हैं। हमने सारी बातें कर ली। अब लड़के हमें या लड़की हमें बोलेगी सर सारी बातें ठीक है, लेकिन जब हम प्लेसमेंट ट्रेनिंग में बैठते हैं या कभी आप जैसे बड़े लोगों से बात करते हैं, तो बात करें कैसे? हमें तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि इंडिया का एनवायरनमेंट ऐसा है, जब आदमी का बर्थ होता है तब भी हिंदी बोलता है, स्कूल में जाता है तब भी हिंदी बोलता है, और कॉलेज में जाता है तब भी हिंदी बोलता है, और उसके अराउंड में भी सब पूरा हिंदी कल्चर है। सो सर, हाउ वन स्टूडेंट कैन बिल्ड हिज और हर कम्युनिकेशन स्किल द बेस्ट? कम्युनिकेशन स्किल का ऐसे है कि ये तो प्रैक्टिस है, राइट। कितना प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूवमेंट होगा। बट अगेन, आपने पढ़ाई की है तो आपको थिंकिंग की एबिलिटी मिली है, राइट। तो थिंकिंग भी जरूरी है उसमें। सो अभी क्या होता है, बेसिकली हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है थिंकिंग में, दे फील स्ट्रेस्ड आउट और दे डू ओवर थिंकिंग। सो ओवर थिंकिंग के भी प्रॉब्लम्स है। सो अभी ये आपने जैसे बोला, इट्स लाइक अ माउंटेन, राइट। आपको अभी सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, बट आपको एक स्टेप से देखना है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप ही देखना है। जैसे आपने कोई गाड़ी चलाना सीखा है तो धीरे धीरे आता है, वो सब कुछ आसान है, करियर डेवलप करना आसान है। बट हम लोग है ना 1 स्टेप एट अ टाइम सोचेंगे ना तो बहुत आसान हो जाता है, और इफ देयर इज समबडी हु इज गाइडिंग यू, इट बिकम्स इजी। सो कम्युनिकेशन का भी ऐसे है। आपको जब बच्चे थे ना, आपके माँ बाप ने, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आपके माँ बाप ने आपको हिंदी सिखाने से पहले कोई और लैंग्वेज सिखा के आपको हिंदी ग्रामर सिखाया क्या? नहीं। हाँ, आपको जो हिंदी जो है बात करने के लिए सीखने के समय आपने एक जजमेंट बेस्ड, जो माँ बाप बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, कोई और बात कर रहा है, उनको सुन के उनका इमोशनल रिस्पॉन्स देख के अपने जजमेंट लेके सीखा लैंग्वेज, राइट। करेक्ट, जो हमने सुना वो हमने सीखा। हाँ, तो बहुत बार ऐसे होता है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है ना, और कोशिश की तुमने, क्योंकि तुम जवान थे तब, यंग थे, अब तुमको कम्युनिकेट करना था माँ बाप के साथ, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। तो एक तो इच्छा थी कम्युनिकेट करने की, अंदर से बहुत स्ट्रांग इच्छा थी कि कम्युनिकेट करने की, और बहुत ही स्ट्रांग इच्छा थी। अभी क्या होता है, हम सीख क्यों नहीं पाते? एक तो हम लोग शर्माते हैं, कोई अरे मैंने ऐसे बोल दिया, वो क्या बोलेगा। तो फिर एक ऐसा ग्रुप बना लो जहाँ पे वो दिक्कत ना आए, एक तो पहले, एंड वो कोशिश करते रहो, बात करते रहो। तो मैं क्या करता हूँ, व्हेन आई स्टार्ट, मैं किसी को इंग्लिश सिखाना है तो मैं उसको बोलता 10 मिनट मेरे को कॉल कर, रोज 10 मिनट 12 मिनट मेरे से बात करना, टॉपिक भी उसको बताता हूँ जिस इज रिलेटेड टू करियर। तो कम्युनिकेशन वो समंदर की तरह है। अभी आप है ना, दोस्तों में आपस में हम जो बात करते हैं वो कम्युनिकेशन अलग होता है, ऑफिशियल जो बात करते हैं अलग होता है, किसी बॉस के साथ बात कर रहे हैं, कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, ये सभी चीजें कम्युनिकेशन अलग अलग होती है। तो उसमें जो वर्ड्स यूज करते हैं वो अलग होते हैं। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि भाई कॉन्फिडेंस हर चीज में नहीं आएगा ना आपको, तो चुन के आपने जो चीज चुनी है उसमें प्रैक्टिस करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा उस चीज में। अभी आपस में तुम दोस्त फ्रेंड्स बात कर रहे हो तो उसमें आप कॉन्फिडेंट हो फ्रेंड्स के साथ, वही चीज आप किसी अनजान लोगों के एनवायरनमेंट में चले जाओगे तो कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे। एंड ये दिस इज जस्ट बेसिक ह्यूमन बीइंग, आप इंसान हो तो ये सब आने वाला है। बट ये जो फियर होता है ना, उसके बारे में भी आपको समझना है। व्हाट इज फियर? फियर इज फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल।
आपके दिमाग में जो स्टोरी बन रही है, मैं कुछ गलत करूंगा, कहूंगा तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी, ये सब चीजें ना, ये स्टोरी है, अलग अलग स्टोरी है सबकी। जो फियर है, और हर इंसान में रहता है वो फियर। सो उसको फियर को कैसे कम करना है, ये कभी जाएगा नहीं कंप्लीटली, इसको कैसे कम करना है, इसके टेक्निक्स होते हैं। तो एक तो कम्युनिकेशन जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, इसका उसका बहुत फायदा होगा आपको करियर में, उसको सीखना जरूरी है सब। ओके, और लेकिन आपके गोल्स कनेक्टेड है, तो पहले गोल्स बनने हैं, फिर आपकी कम्युनिकेशन हो गए, क्योंकि हर कुछ सीखने जाएंगे तो पूरी दुनिया लाइफ चली जाएगी। सो वैसे हमें, मैं दिक्कत ये होती है कि भाई हमारे जैसे एक्सपीरियंस लोग भी है ना, मतलब मैं अभी खुद मराठी सीख रहा हूँ, राइट, मैं मराठी बच्चों के साथ बातें करता हूँ, अभी कॉलेज में जाके मैं ट्रेनिंग देता हूँ, तो मैं खुद मराठी सीखता हूँ। ओके, मैं किताबें पढ़ता हूँ, मराठी मूवीज देखता हूँ, और मैंने कुछ लोगों के साथ ऐसे रिश्ते बनाए कि हफ्ते में 2-3 बार उनसे मराठी बात करता हूँ। वहाँ बात करने का मौका नहीं मिलता तो इम्प्रूव कैसे होगा, है ना? करेक्ट। हाँ, तो वो जरूरी है। हाँ, मतलब कैसे सीखना है वो भी समझना जरूरी है। हाँ। सो इन कम्युनिकेशन स्किल सर ने बहुत सारी बातें कही, तो हम उस बातों को कंक्लूड कर देते हैं, राइट। तो पहली चीज सर ने बोला देखो, दूसरी चीज सर ने बोला सुनो, तीसरी चीज सर ने बोला बोलो। देखोगे कहाँ? हमारे से कॉलेज स्टूडेंट्स, अब आप बोलोगे सर हमसे कॉलेज की बुक्स रीड नहीं होती, अब आप बोल रहे हो हम कुछ और पढ़े। सर हम हिंदी मूवीज देख सकते हैं, सर इंग्लिश मूवी नहीं हो पाएगी। आप बोलोगे सर हम बोले तो बोले कहाँ? अब सर ने जैसा अभी पॉइंट किया कि मैं मराठी लोगों से बात करता हूँ, यार इतनी बड़ी दुनिया है, कोई ना कोई तो दोस्त होगा जो इंग्लिश अच्छा बोलता होगा, राइट। पहली चीज मैं सजेशन भी चाहूंगा सर से, सर टाइम्स ऑफ इंडिया बेस्ट होगा आई गेस फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश। टाइम्स ऑफ इंडिया तो ठीक है, हमें प्रॉब्लम ये आती है कि भाई है ना, आजकल है ना बहुत सारे ऐसे एडिक्टिव चीजें हो गई हैं, राइट। अभी जो है, जो ग्लैमर है, या फिर आप इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह, बच्चों को आदत क्यों लगती है, ये सभी चीजें बहुत एडिक्टिव होती है, करेक्ट राइट। करेक्ट। फर्स्ट इज दैट क्या पढ़ रहे हो, वो सब्जेक्ट है ना आपके गोल से कनेक्टेड है क्या, देखो। ओके, बहुत सारी नेगेटिव चीजें आती है न्यूज़पेपर में, मर्डर हो गया, इसका कत्ल हो गया, ये बहुत सारी पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं अपने, वो सब लोग अपने बहुत अच्छे विचार तो सबके नहीं है ना। तो हमको जो है अपने करियर से जो डेवलप करना है कम्युनिकेशन स्किल्स, बुक्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बट न्यूज़पेपर भी पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट pick up the right article to read, आर्टिकल या राइट। तो उसमें भी जो है ना एडिक्शन है आजकल के जमाने में, बच्चों को ये अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। करेक्ट करेक्ट। आज के जमाने में अपॉर्चुनिटीज बहुत है और डिस्ट्रैक्शंस भी उससे डबल है। और जो आपका ओल्ड एज था, अभी आप लोग जो भी हो वो आप लोगों ने सीखा है, समझा है, एक्सपीरियंस किया है। अब आप लोगों के जमाने में अपॉर्चुनिटी कम थी और डिस्ट्रैक्शन तब भी उतने ही थे। आज अपॉर्चुनिटी भी उतनी है और डिस्ट्रैक्शन उससे डबल है, राइट। देन ओनली यू आर हियर। और अभी के लोग वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प नहीं कर पा रहे। एज आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम, आपने कहा रील्स, ये सब तो यार वो 99% लोग करते हैं, और आबिद सर इज द वन, वो 1% में आते हैं, राइट, जो बुक्स रीड करते हैं। बुक्स रीड करते हैं, हाँ, गौर करिएगा। आप सोचो कि मैं बुक ले लूं आज, जैसे मेरे को मोटिवेशन मिल गया आबिद सर से कि नहीं अब तो मैं बुक पढ़ूंगा, बुक अमेजोन से आ गई, 2 पेज पढ़ लिए, अरे यार ठीक है रख देता हूँ, बाद में पढ़ लूंगा, वो 1% में नहीं 99% में आता है। सर व्हाट आर द 3 books you suggest for our viewers, for our students? वैसे बुक्स तो बहुत है, मेरा गुड रीड्स के लिस्ट में काफी बुक्स मिल जाएंगे। प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे भी कभी कभी बुक्स है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना, आजकल का प्रॉब्लम क्या हो गया है ना, अभी लाइब्रेरीज में भी जैसे कॉन्सेप्ट आ गया है ह्यूमन लाइब्रेरीज का। ओके, अभी तो वक्त कम होता है, जनरली जो है सक्सेसफुल लोग है ना, बुक्स पढ़ने की वजह से सक्सेसफुल होते हैं। अब कोई भी है ना बड़ा फिल्म स्टार देखो, कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है,
वो किताबें तो जरूर पढ़ता है। सो पुराने जो इंडस्ट्रियल एज का जो किताबें जो है ना, दिस इज नेवर गोइंग टू, बंद नहीं होने वाली है। इतना याद रखो कि पुराने जमाने की बार्टरिंग सिस्टम इकोनॉमी जो है अभी भी चल रही है, और थिंग इज जो नए जमाने की जो है ना बहुत जोर शोर से चलती है। वो 20% ही रहता है और वो ज्यादा उस पर हंगामा होता है, इसलिए ये दिखाई नहीं देता। तो एक बात जरूरी है, जो बुक्स पढ़ रहे हो ना आप, एक तो आजकल है ना सोशल मीडिया पे बहुत आसान हो गया है राइट बुक्स सिलेक्ट करना। हमारे टाइम में वो आपका ये नहीं होता था, रिव्यूज नहीं होते थे, करेक्ट। राइट। और बहुत सारे जो टॉप जो है ना, इलॉन मस्क है, बिल गेट्स है, ये सभी अपने रीडिंग लिस्ट शेयर करते रहते हैं इंटरनेट पे। आप जो है ना रील्स देख रहे हो ना, उसमें भी आ रहा है, रिलीज में भी अच्छी यूजफुल चीजें आ रही है, उसको सेव करो, आती है। फिर देखो Yes. कौन कौन सी किताबें बताई है, उसको पढ़ो। मतलब रील्स भी देखना जरूरी है, बट उसको लिमिट करना बहुत मुश्किल होता है यार। जैसे सिगरेट पीने की लत लग जाती है ना, तो रील्स देखने की लत लग जाती है ना। तो वो भी वही है, उतना ही डेंजरस है वो भी, क्योंकि ये सभी Correct, अपना ब्रेन को है ना, वो इस तरह से जैसे इट्स लाइक अ ड्रग, ड्रग। हाँ, वो कैप्चर कर लेता है। सो अभी क्या पढ़े और कैसे पढ़े, अगेन अगेन आई विल टेल यू, आपका गोल्स आपके पास नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स, तब आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो टाइम मैनेजमेंट अगेन इज ऑल कनेक्टेड टू योर गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एंड रीडिंग भी आपका कनेक्टेड है आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स से। जो चीज हम लोग है ना अच्छे से करते हैं ना, उसमें ज्यादा मजा आता है। आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, कौन सा स्पोर्ट में आप एंजॉय सर करते हो? क्रिकेट में सर अंडर 18 2 बार सिलेक्शन हुआ है। हाँ, तो क्रिकेट अगर है ना, मैं बोलूँ हमें, मेरे साथ है ना, मुझे टेबल टेनिस और बैडमिंटन अच्छा आता है, मेरे साथ वो खेलो, तो तुम नहीं बोलोगे सर क्रिकेट खेलते हैं, राइट? इंटरेस्ट नहीं है मेरा। हाँ, जो चीज हमको अच्छी आती है ना, उसमें इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। तो फर्स्ट चीज दैट है ना, जो चीज तुम्हारे गोल्स बने हैं ना, उसमें इंटरेस्ट पैदा करो। जितना उसके बारे में ज्यादा जानोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना और मजा आएगा और वो करने की चाहत बनती है। तो आसान है, सक्सेस मिलना बहुत आसान है, बट ये सिंपल जो फॉर्मूलेज है ना, उसको समझना जरूरी है। सक्सेस का पाथ चढ़ना बहुत मुश्किल है। सक्सेस इज वेरी इजी, लेकिन अगर साइड आपको अच्छा ट्रैक और अच्छा मेंटरशिप मिल गया, देन सक्सेस इज वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। मतलब उसका जो रास्ता चलना है ना, स्टेप बाय स्टेप ही है। ऐसे नहीं कि आपको बहुत बड़ा पहाड़ उठाना है, ओके, वो स्टेप बाय स्टेप ही है। एवरी डे यू हैव टू वर्क एंड मूव फॉरवर्ड। यस। तो यार हमने लाइन बाय लाइन सारी चीजें देखी, करियर, मैनेजमेंट, गाइडेंस, कॉन्फिडेंस, स्पीकिंग स्किल्स, सब कुछ देखा। एज आई टोल्ड यू, 4 स्टेजेस ऑफ करियर, राइट? तो अभी हम आबिद सर से उस आर्टिकल को समझते हैं, सीखते हैं और अपनी लाइफ में उसे असेंबल करते हैं। सब प्लीज। मैं तो मेरा जो लिंक्डइन प्रोफाइल पे है ना, वो आर्टिकल तुमको मिल जाएगा। तो आई डोंट नो हाउ मच आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन हियर, बट मैं कोशिश करता हूँ। सो इट्स लाइक अ पिरामिड, राइट? अभी करियर का जो है ना, इट्स लाइक अ पिरामिड। पिरामिड क्यों? ये नीचे जो हिस्सा होता है ना, ये जो बड़ा हिस्सा है, इसको हम टेक्निकल स्टेज बोलते हैं। उसका बीच वाला हिस्सा है ना, उससे छोटा होता है, और टॉप का जो हिस्सा होता है ना, बहुत छोटा सा होता है, टिप ऑफ द पिरामिड। जो पिरामिड जो है ना, इसमें स्लोप है। इसका मतलब क्या है? ये पिरामिड जो दिखा रहा है, इट्स लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है। सो उसके टॉप में जो है ना, सीईओ एक ही होता है। कोई कंपनी में सीईओ 2 या 4 नहीं होते, एक ही होता है, राइट? तो टॉप में जगह कम होती है, राइट? तो जो एक्चुअली, और ये सभी कंपेयर टू अदर्स है, राइट? आप अपने स्किल्स जैसे डेवलप करोगे, अपना जो है कंट्रीब्यूशन कैसे दोगे ऑर्गेनाइजेशन में। सो एक कंपनी में आप ज्वाइन करते हो लोअर लेवल टेक्निकल स्टेज में। टेक्निकल स्टेज में भी आपके जो है ना प्रमोशन मिलता रहता है, आपकी सैलरी ग्रोथ होती है, आपकी ग्रोथ होती है, बट यहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को वैल्यू होती है। मतलब आपका जो कंट्रीब्यूशन है, ओके, आपकी सैलरी इतनी ग्रो होगी जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो कंपनी को, राइट? उसके प्रोपोर्शन में होगी। तो आपका जो ग्रोथ होगा, ये फर्स्ट स्टेज पे, टेक्निकल स्टेज में आपके परफॉर्मेंस पे होगा। और टेक्निकल स्टेज में क्या जज करते हैं? बहुत सबको आसानी से जॉब मिलते हैं एक्चुअली। टेक्निकल स्टेज में आपका टेक्निकल स्किल देखते हैं। सॉफ्ट स्किल्स जो है टेक्निकल स्टेज में बहुत कम जरूरत है, जैसे लिसनिंग स्किल्स चाहिए, थोड़ा कम्युनिकेशन थोड़ा चाहिए। आपका कम्युनिकेशन भी उतना खास नहीं रहेगा तो भी आपको जॉब सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका जो समझो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर को प्रोग्रामिंग आती है तो जॉब सिलेक्शन हो जाएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि इतनी जॉब्स हो रहे हैं, अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम इज ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। तो कैसे? सेकंड स्टेज जो है उसको मैनेजरियल स्टेज बोलते हैं।
ये मैनेजरल स्टेज को है ना, दूसरा नाम भी है इसको हाउ स्टेज बोलते हैं, हाउ टू गेट थिंग्स डन। फर्स्ट स्टेज जो टेक्निकल स्टेज है उसको व्हाट स्टेज बोलते हैं, क्योंकि मैनेजर है ना टेक्निकल स्टेज के जो बंदा है उसको बोलता है कि क्या करना है, तो वो जो बंदा है टेक्निकल स्टेज वाला वो अपने दायरे में उतना ही काम करेगा। मैनेजर क्या करता है, मैनेजर की परफॉर्मेंस उसके स्पैन ऑफ कंट्रोल से होती है। मान लो उसके टीम में 5 टेक्निकल लोग हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस पे मैनेजर की सैलरी डिसाइड होती है, और उसका जो स्पैन अभी 5 से 10 लोग हो गए उसकी टीम में, तो उसकी सैलरी बढ़ेगी, कंपनी की ग्रोथ होगी, उस हिसाब से उसकी सैलरी ग्रोथ होगी। तो मैनेजर की जो सैलरी होती है इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिज ओन परफॉर्मेंस बट हिज एबिलिटी टू कम्युनिकेट। उसको जैसे अपने टेक्निकल जो लोग हैं उनको कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, कैसे उनसे काम करवा सकता है, क्योंकि उसको एक ही काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, कैसे करना है उसको पता होता है, अलग अलग तरीके से करना है उसको पता होता है, राइट राइट। सो ये व्हाट स्टेज तो हो गया, हाउ स्टेज तो हो गया। थर्ड स्टेज जो है टॉप की जो सीईओ डायरेक्टर की स्टेज है उसको वाई स्टेज बोलते हैं। वाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन लोगों को हर डिसीजन का रीजन पता होता है। सो मान लो ये कंपनी में दूसरी सिटी में मैंने ब्रांच खोला है, क्यों खोला है, उसी सिटी में क्यों खोला है, अभी मैं नागपुर में खोल रहा हूँ, मैं किसी और छोटे अमरावती में नहीं क्यों खोल रहा हूँ, या फिर मैं बेंगलोर जाऊंगा, चेन्नई नहीं जाऊंगा, मतलब मुझे 100 एम्प्लॉयज को हायर करना है इस साल, वो क्यों करना है, दूसरे कंट्री में ब्रांच ओपन करना है, ये क्यों करना है। ये सभी सवाल के जवाब जो होते हैं ना सीईओ के पास होते हैं। सीईओ जो है या फिर जनरल मैनेजर्स जो डिपार्टमेंट्स के होते हैं, जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, राइट। सो अभी ये पिरामिड हो गया, अभी फोर्थ स्टेज कहाँ से आ गया आप पूछोगे। अभी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो ये जो पिरामिड फिर उल्टा होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, कंपनी में ना वाई स्टेज पहले आता है। आपको रीजन पहले पता होना चाहिए कि आप यू आर द सीईओ ऑफ द स्टार्टअप। जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टअप है ना सीईओ बनने के बाद अपना स्टार्टअप खोलो, नहीं। आप अगर टेक्निकल स्टेज में हो, आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी है समझने की और ग्रोथ करने की, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इंटेंस जर्नी ऑफ इंटेंस लर्निंग एंड इंटेंस एक्शन। उसके लिए उनको लर्निंग के लिए है ना, फिर उनको दे नीड टू हैव अ टीम ऑफ पीपल हु कैन एडवाइस देम, मेंटर्स लगते हैं, इन्वेस्टर्स लगते हैं, ये सब रहता है। सो दो तरह की कंपनीज होती है, एक तो इन्वेस्टर फंडेड होती है, एक तो कस्टमर फंडेड होती है, राइट। तो आप अगर कोई भी स्टेज में है, आप टेक्निकल स्टेज में हो या मैनेजर स्टेज में हो, आप डायरेक्टर स्टेज में हो, दैट इज अ वाई स्टेज। किसी भी स्टेज से आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू कर सकते हो। और जिस तरह से अभी इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है इंडिया की, उस तरह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आपको एंटरप्रेन्योर बनने की। तो ये फोर्थ स्टेज जो है इट कैन बी एनीवेयर, एंड इवन बिफोर एक्चुअली हैविंग एनी एक्सपीरियंस आल्सो यू कैन वर्क। अभी कॉलेज में अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर के साथ जुड़े हो, जहाँ पे आप एक्सपीरियंस गैदर कर रहे हो उसके नॉलेज से, और मैं जो आपको शेयर कर रहा हूँ ये एक्सपीरियंस ही है, मैं अगर उसमें एग्जांपल बता दूं तो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप बनने के ख्वाब देख सकते हो। ओके, उसको कैसे करना है उसके तरीके अलग होते हैं, बट ये चीजें हैं। तो दिस आर द 4 स्टेजेस ऑफ अ करियर। ठीक है मैं या सो सभी लोगों को 4 स्टेज बहुत अच्छे से समझ आया होगा। समझ इसीलिए आया, सर ने एग्जाम्पल के थ्रू अपना एक्सपीरियंस सभी को बताया, राइट। ये जितना भी सर ने कहा, ये पढ़ा लिखा ज्ञान एक तरफ, लेकिन जो आदमी अपने एक्सपीरियंस से सीखता है ना, वो किसी किताब से नहीं सीखता, राइट। या सर थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, बट एट लास्ट सर प्लीज गिव सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू आवर मोस्ट वैल्यूएबल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, जो अपनी लाइफ में सक्सेस हो सके, अपने एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेस हो सके। सी, एक तो ये बात है कि यू नो सबसे पहली टिप ये बात है कि अंडरस्टैंड पर्पस क्या है अपना एजुकेशन का, अपने बारे में जो है इंट्रोस्पेक्शन करना सीखो, अपना स्ट्रेंथ क्या है समझना जरूरी है। आप जितनी जल्दी समझोगे उतना आसान है वो लाइफ करियर प्लानिंग वगैरह। मतलब स्ट्रेंथ्स एक्चुअली आर इक्विवेलेंट टू योर अपॉर्चुनिटीज। जो अपनी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस आर थ्रेट्स। तो आपके वीकनेसेस कवर करने वाले जो लोग हैं उनके साथ आप काम कर सकते हो। बट अब कोई भी सक्सेसफुल इंसान ले लो, वो लॉन्ग टर्म काम करता है। फॉर एग्जांपल शाहरुख खान, इफ यू लुक एट हिम, जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ उसका अच्छा इक्वेशन है, उनके साथ ही काम करेंगे तो बहुत सक्सेस मिलता है। तो करियर में भी है ना, बहुत सारे जो है जंपिंग करते हो ना, उसमें जो स्लोप है याद रखो, इस स्लोप में है ना जो सांप सीढ़ी का खेल होता है, अब ऊपर जाओगे फिर नीचे आओगे।
फिर अच्छा, ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है। तो एक तो फर्स्ट इज दैट आइडेंटिफाई कि भाई आपको कहाँ जाना है, कौन सी इंडस्ट्री में काम करना है। बेस्ट वे टू ग्रो इज एक्चुअली टू स्टे देयर एंड एक्वायर, कीप ऑन लर्निंग एंड ग्रोइंग। ओके, या फिर आपको कंपनी ठीक नहीं है चेंज करो, लेकिन बार बार बहुत सारी कंपनी जंप करोगे सिर्फ थोड़े पैसे इंक्रीज होने के लिए ना, वो ग्रोथ नहीं है, फॉल्स ग्रोथ है। वो ऐसे फील करता है कि ग्रोथ हो रहा है, बट फिर मिड लाइफ क्राइसिस आ जाती है 40-45 साल के उम्र में, फिर आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो आपको जॉब्स यस, नहीं रहे। तो फर्स्ट चीज है सॉलिड रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है, जो आपको सपोर्ट करे। आपके कंपनीज में आपको मेंटर ढूंढना जरूरी है। आपका सीईओ अगर मेंटर हो जाए, आपका जो जनरल मैनेजर आपका मेंटर हो जाए, तो उससे बढ़िया और कोई चीज नहीं है। तो एक रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इस एज में जो है ना, अभी टिश्यू पेपर सोसाइटी बन गया है, जहाँ पे यूज एंड थ्रो, जिस काम से आप काम मतलब करो, मतलब खत्म हो गया तो फॉरगेट द फ्रेंड्स, फॉरगेट द अक्वेंटेंसेस। एक्चुअली पुराना जो विजडम है ना, हमेशा काम आता ही है। ओके, नई जो है ना एनवायरनमेंट बनती है, और उसको मैच्योरिटी तक वो फिर खत्म होता है। तो मैच्योरिटी बहुत जल्दी हो रही है अभी, इंटरनेट एज की हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज का जो इंटरनेट एज, तो बहुत जल्दी मैच्योर हो गया। लोगों ने समझ लिया, सोशल मीडिया इंट्रोड्यूस किया, सोशल मीडिया एज कंप्लीटली हमको हर लाइफ के हर इसमें अभी इन्फ्लुएंस कर रहा है, राइट। हर चीज इंफॉर्मेशन हमको सोशल मीडिया से मिल रही है। अभी जो टॉप की जो दुनिया की ट्रिलियन डॉलर कंपनीज हैं, वो सोशल मीडिया कंपनीज हैं। फेसबुक, राइट, एप्पल, गूगल भी है, राइट। उसको मामा या, बोलते हैं। ओके, मेटा, एप्पल जो भी है। ओके, अभी आर्टिफिशियल एज आ रहा है। ओके, बट यस, ऑलवेज रिमेंबर, एरो का मैंने आपको एग्जांपल दिया, पीछे की जाओ, पीछे जाओ, सिर्फ आगे मत देखो, पीछे भी देखो, बट बी इन द प्रेजेंट, बी इन द प्रेजेंट, बट आगे पीछे यस। देखना जरूरी है ना। और आगे पीछे देखना भी ज़रूरी है, और वो जो तीर मार रहे हो, ऐसा नहीं सर ने बोल दिया पीछे जितना खींचो और पता नहीं वो टारगेट से ही कहीं और जा रहा है। तो टारगेट पे निशाना होना चाहिए आप सभी का, वो जो टारगेट के सेंटर वाला होता है ना, वहाँ टारगेट होना चाहिए। वरना आपने बोला कि ठीक है, आबिद सर ने कहा है जितना पीछे खींच सकते हो खींचो, बस तीर कहीं और ही जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना है हमें। सर, वी होल अमय लाइफलाइन्स फैमिली, thank you so much for being here with us. We are honored to have you here. और आप सभी लोग जो देख रहे हो जरूर चाहते होंगे आबिद सर पार्ट 2 में जरूर आए और अपना एक्सपीरियंस और कुछ शेयर करें। अभी हमने बुक्स की बात जरूर कही थी, तो बुक्स सर ने बताई तो हैं, लेकिन हम कुछ और बातें भी जरूर करेंगे पार्ट 2 में। बिल्कुल बने रहिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू मैम।